Hello students, welcome back in my physics class, and today for class 10th I am taking the chapter electricity. Students, you know very well that if there is dark inside the room, will you be able to see the objects? No. After the sunset, you will not be able to see the things. If you go to the market, in a mall, you will not be able to purchase the things. No, not like that. You can purchase the things because of they will use candles to see the objects. They will use lamp which will work with the help of kerosene, and that will produce the light. Right? In previous chapter, you have gone through the light, which is essential to see the objects, right? But if there is no light, then how you will see? Have you seen the metro cities? Very nice position. The lights are showing like a moon. If you go to the top of that hill and see the base, you will see that stars are shining. Actually, they are not stars. They are the light bulbs glowing, but appears like stars. So how that bulb is giving light? Have you ever think about it? How you see the things in your mobile when it is charged? Students, this all is the electricity, the movement of the fan, working of the AC, working of the bulb, working of the mobile phone, etc. That all is due to electricity. But there is a great difference between the electricity that is used in the case of bulb, AC, fan, that is coming through the power station, and the light or the torch that provides you light with the help of battery or cell. What is the difference? One which is coming from the power station to you, that is AC, alternate current, and while the other which is formed with the help of any battery or cell is DC, that is the direct current, right? And that you will come to know in detail in class 11, right? Initially, we are going to discuss about the electricity. Means electricity जो हमारे घरों में पावर हाउस से आ रही है और हमारे घर में रोशनी कर रही है, ठीक है? तो अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने की, तो उससे पहले बेसिक थिंग जो हम यूज करने जा रहे हैं, दैट इज योर चार्ज. What is the charge? Students, charge is your physical property of the conductor or matter. Charge is the physical property of the matter which when placed in electric or magnetic field experiences force. ठीक है? वैसे चार्ज की डेफिनेशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो बहुत सी डेफिनेशन मिलेंगी. इफ यू विल गो थ्रू द बुक और नेट, you will see number of definitions are there. Charge, subatomic particle, electron, proton, these are the charge. तो number of definitions are there, लेकिन आपके बेसिस पे ये मैटर की एक प्रॉपर्टी है. चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर when which experiences force when placed in इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. अब आपके सामने बात आती है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स एक्सपीरियंस करते, दैट विल डिस्कस इन हायर क्लास, राइट? लेकिन चार्ज का ये डेफिनेशन है, इसको नोट कर लीजिएगा. व्हाट इज दिस? दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर विच एक्सपीरियंसेस फोर्स व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब चार्ज की बात करें तो they are of the two types. One
positive charge and number 2 negative charge. Students, charges are the two types. One is the positive charge and other is the negative charge. और हम लोग जब बात करते हैं इसकी, तो जानकारी के लिए आपको मालूम है, जब हम नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन इट इज नेगेटिवली चार्ज, एंड जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द प्रोटॉन एंड दैट इज पॉजिटिवली चार्ज, राइट। अब फिर बात आती है कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो अब इनकी प्रॉपर्टी अगर देखें हम लोग, तो पहली बात, अगर प्लस रखा है तो ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये प्लस रखा है तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। इसका मतलब चार्जेस एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर। मैंने चार्ज की डेफिनेशन नहीं बताया था ना, तो अगर ये फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो ये क्या होगा, ये फोर्स जो अप्लाई करेंगे, अगर बीच में दिखा दें ऐसे, तो ये रिपेल करेंगे, चाहे प्लस हो और चाहे माइनस हो। इसका मतलब सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। कीप इट इन माइंड, ये सब नोट बनाते चलिएगा। सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर, वाइल अगर एक प्लस ले लें और एक माइनस ले लें तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। प्लस और माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि प्लस प्लस या माइनस माइनस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब हम चार्ज की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा चार्ज, तो चार्ज को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू, और इसका यूनिट क्या है, कूलम। सी से लिखते हैं यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, कूलम, और इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं। तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, अब हम जब चार्ज की बात करते हैं, कूलम यूनिट है, सी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। अब कहते हैं अगर हम चार्ज की बात करें तो किसी कंडक्टर पे, इफ, नोट करिएगा, इफ अ conductor is having q charge, find number of electrons present। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने किससे लिखा है, इलेक्ट्रॉन है तो इसको ई से लिखते हैं, ठीक है। प्रोटॉन का चार्ज भी हम लोग ई से लिखेंगे, लेकिन ये कैसा होगा, पॉजिटिव, और ये कैसा होगा, नेगेटिव। ध्यान से सुन लीजिएगा कि चार्ज प्रोटॉन पे भी जब लिखना होगा तो हम ई लिखेंगे या क्यू लिखेंगे, दैट विल बी पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन को ई लिखते हैं, लेकिन ये कैसा होगा, नेगेटिव। तो अब आप देखिए कि क्यू चार्ज होता है एन ई के बराबर, ये रिलेशन है चार्ज और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज इज अ बिगर क्वांटिटी दैन द इलेक्ट्रॉन। क्यों, क्योंकि n इज इक्वल टू क्यू बाई ए। अगर किसी भी कंडक्टर पे कोई चार्ज दिया है तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन अगर मुझे फाइंड करना है, तो वी कैन फाइंड n इज इक्वल टू क्यू बाई ए, और जब डिवाइड करेंगे तो दैट विल गिव यू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स प्रेजेंट एट दैट सब्सटेंस। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। इसको जरा आप नोट करिए, फिर बात करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, you got the information about this, q is equal to ne, and the number of electron, n क्या है, n is number of electrons किस पे, present at that conductor, right। तो n is equal to q by e, clear। अच्छा, अब एक चीज देखो यार, जैसे मैंने कहा कि सोडियम समझने की कोशिश करिएगा, Na सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। सोडियम को किससे डिवाइड करते हैं, Na 11। तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 288 इलेक्ट्रॉन को शेल्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 281 यानी 2, इसकी ऑक्टेट पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स और तीसरे ऑर्बिट में 1, तो ये कंप्लीट नहीं, 2 8 18 ऑनवर्ड कंप्लीट ऑक्टेट होती है, लेकिन यहां पे केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, राइट।
और जब ये ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। तो जब ये निकल जाएगा, ऐसे ही Cl में देखिए कितने हैं 17। 17 का मतलब 2 8 7। ठीक है, तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसको मिल जाएगा, और जब मिल जाएगा तो यहां कितना हो जाएगा 2 8, ऑक्टेट पूरी हो गई। और यहां कितना हो जाएगा 2 8 8, इसकी ऑक्टेट पूरी हो गई। और क्या बनेगा, दैट विल प्रोवाइड यू NaCl। लेकिन इस कंडीशन में Na क्या हो जाएगा, Na विल बिकम, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो Na विल बिकम Na+, यानी पॉजिटिव। तो इसका मतलब अगर कोई किसी कंडक्टर पर Q चार्ज है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ये देखिए, ठीक है, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। और अगर, और यहां पे क्या हुआ, Cl क्या हो जाएगा, इसने लिया है एक इलेक्ट्रॉन यहां का, तो इसका क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव हो गया ना, क्यों, ऋण उधार लिया इसने ना, ऋण लिया, तो दैट्स व्हाई इट इज नेगेटिव। तो फिर अगर ये कहते हैं इफ अ कंडक्टर इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्सेस में हो जाएंगे ना भाई, यहां से ट्रांसफर हो गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना, तो इसका मतलब अगर पॉजिटिव कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगर यहां नेगेटिव चार्ज है तो देयर इज एक्सेस। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन यहां से आया तब ऑक्टेट पूरी हुई। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कोई कंडक्टर पे चार्ज पॉजिटिव है तो देयर इज शॉर्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और अगर चार्ज हमारा नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्सेस। इतना नोट करिए, वीडियो पॉज करके नोट करिए। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं क्या, कि ध्यान से देखिएगा, चार्ज की वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे है तो नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज ऑन प्रोटॉन, ये क्या है 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव, तो प्लस। इसका मतलब प्रोटॉन पे चार्ज अगर डिस्कस करना है, amount of charge on proton and electron both are same, that is 1.6 into 10 to the power -19 coulomb, but at the electron it is negative and at the proton it is positive. तो अभी स्टूडेंट्स आपको ये इंफॉर्मेशन मिल गया किस पे कितना चार्ज है, राइट। तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कहते हैं कि किसी कंडक्टर पे 1 कूलम का चार्ज है, 1 कूलम का चार्ज है, व्हाट, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। अ कंडक्टर इज हैविंग 1 कूलम चार्ज, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा क्या था, n इज इक्वल टू Q बाई E, यानी 1/1.6 इंटू 10 टू पावर -19। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/1.6 इंटू 10 टू पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे +19 और 10 से इधर कर देंगे तो 10/1.6 इंटू 10 टू पावर 18, 10 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और दैट विल गिव यू 6 point something 12 इंटू 10 टू पावर 18। ये क्या है, नंबर। तो इसका मतलब 1 कूलम चार्ज में क्या बोल रहा हूं, 1 कूलम चार्ज है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6.2 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इसीलिए मैंने पहले बताया कि चार्ज इज बिगर, वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, एक क्वांटिटी, क्योंकि 1 कूलम चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 6 point something इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चार्ज तो बिगर हो गया, राइट। तो अभी आपको समझ में आ गया। अब हम जो बात करने जा रहे हैं, इसको सारा कुछ वीडियो पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कुछ बातें, देखिएगा। इलेक्ट्रिसिटी, मैंने कहा इलेक्ट्रिसिटी इज
शुरुआत जब इलेक्ट्रिसिटी की तो मैंने कहा कि सबसे पहले हमको चार्ज जाना जरूरी है। अब चार्ज की कंडीशन क्या हो सकती है? एक चार्ज रेस्ट और मोशन, या तो चार्ज रेस्ट में है और या चार्ज मूव कर रहा है। दो बातें हो सकती है ना चार्ज की। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, दैट विल बी द इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसको हम इसकी स्थिति जब हम करते हैं तो ये कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लेकिन जब चार्ज मोशन में है तो ये कहलाता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। When charge is in the state of rest, it is electrostatics. यानी इलेक्ट्रॉन इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, राइट। और जब ये मूव करेगा दैट टाइम वी विल स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमने देखा है कि जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब वायर है जिसके थ्रू करंट आती है। लेकिन घर में हाउस होल्ड्स में जब यूज करते हैं तो उस पर रबर का कोटिंग होता है। क्यों? क्योंकि जो कॉपर का वायर, अंदर पतले पतले वायर पड़े हुए हैं, उनको टच करेंगे तो हमको करंट मार देगा, ठीक है। लेकिन ऊपर जो है आपका जो रबर की कोटिंग है या प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है, व्हाट इज दैट? दैट इज इंसुलेशन। मतलब कि वो उनमें से करंट पास नहीं करती। तो इसका मतलब करंट क्या है मैंने पहले बताया। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब फ्लो ऑफ चार्ज। तो चार्ज फ्लो कर रहा है तो क्या चार्ज कॉपर में फ्लो करता है, प्लास्टिक में नहीं फ्लो करता, रबर में नहीं फ्लो करता, ग्लास में नहीं फ्लो करता। इसकी बेसिस पर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है अभी बेसिकली 2 पार्ट्स में, वैसे 3 पार्ट्स हैं। पहला क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब क्या हुआ? द सब्सटेंस। पहला क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर क्या है? सुनिए और नोट्स बनाइएगा। कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी या करंट या चार्ज कैन पास इजली। मतलब इलेक्ट्रॉन या करंट कैन पास। कंडक्टर्स यानी कंडक्टर्स आर द सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी या करंट कैन पास इजली, दैट आर द कंडक्टर्स। और ये कौन कौन से सब्सटेंस है? आपका कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, स्टील है, ये सारे सब्सटेंस कंडक्टर्स, मेटल्स जितने भी हैं ऑलमोस्ट हमारे कंडक्टर है, राइट। अब एलॉयज भी कंडक्टर आते हैं। 2 मेटल्स मिला दीजिए तो कंडक्टर वो भी रहेंगे, ठीक है। उनमें भी कंडक्शन होगा, उनमें भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब दूसरा क्या है? इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या है? इलेक्ट्रॉन या करंट कैन नॉट पास। इसका मतलब द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट या चार्ज कैन नॉट पास, जैसे वुड। अब आप देखिए कि जो आपका बिजली का तार है उसमें लकड़ी की स्टिक से उसको तार को जो लोग कटिया लगाते हैं और पीट पीट के कनेक्शन ठीक करते हैं, ठीक है। लेकिन लोहे के रॉड से करो तो क्या तुरंत करंट आ जाएगी, चार्ज फ्लो कर जाएगा उसमें और आपको करंट मार देगी, ठीक है। या जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कुछ मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स क्या मतलब वर्कर्स होते हैं जो आपके यहां कनेक्शन ठीक करने आते हैं, तो वो रबर के ग्लव्स पहन लेते हैं, ठीक है ना। अगर डायरेक्ट छुएंगे तो करंट मार देगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी भी इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है। क्यों? क्योंकि ब्लड है बॉडी में ना, ब्लड का मतलब आयरन, ब्लड हीमोग्लोबिन है तो आयरन, आपने सुना होगा आयरन की कमी हो गई, ठीक है, तो दैट इज कंडक्टर। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गए? सब्सटेंस कैसे हो गए? कंडक्टर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास, इंसुलेटर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास। और तीसरा एक सब्सटेंस ऐसा है जिसको हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस which have the intermediate property of the conductor
एंड इंसुलेटर, ये हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। सब नोट्स बना लीजिएगा।